ठीक है. I suppose I am clear now and I can go ahead now. Okay. Nilesh, Ashutosh, Saurabh, I'm clear now, right? I can go ahead. Kudos. Now let us have a look at short. Now, what do you see in front of you? What you see in front of you? You see a ionic solid. A ionic solid is made up of ions, cations and anions. That means negative ions and positive ions. The violet ones which you see are the negative ions, and the red ones which you see are the positive ions. It is very much visible that the positive ions are smaller in size as compared to your negative ions. Obviously, that is for a very obvious reason which we have studied in our lower standards, that due to addition of extra electrons, the anion size increases, and due to the loss of electrons, the cation size decreases. Okay. तो अपना मस्त एक क्रिस्टल सॉलिड अपने सामने दिख रहा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना हुआ है. अभी Schottky defect is very much similar to vacancy defect, or rather it is the advanced version of vacancy defect in ionic solids. ठीक है. अपना वेकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था बेटा? वेकेंसी डिफेक्ट में एक पॉइंट से एक एटम या आयन गायब हो रहा था. एक पर्टिकुलर पॉइंट से एटम या आयन गायब हो रहा था. यहाँ पे भी सॉरी, वहां पे आयन नहीं था, वहां पे एटम ही था. यहाँ पे भी वही होगा, बट यहाँ पे ना अगर एक नेगेटिव आयन गायब हो रहा है तो इक्विवेलेंट एक पॉजिटिव आयन भी गायब होगा. क्यों? बिकॉज ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है. अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर या पूरा कंपाउंड जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा. The number of positive ions has to be equal to the number of negative ions for electrical neutrality of the compound, of the substance. Let us see how. Now, equal number of positive and negative ions are displaced. They are missing from their lattice. अगर दो नेगेटिव आयंस मिसिंग है तो दो पॉजिटिव आयंस भी मिसिंग है तो ये वेकेंसी डिफेक्ट थी. बट वेकेंसी डिफेक्ट में क्या था? एक दो एटम्स मिसिंग थे. यहाँ पे अगर दो पॉजिटिव आयंस मिसिंग है तो दो नेगेटिव आयंस भी मिसिंग होंगे. मिसिंग है, वेकेंसी है, अपने लैटिस पॉइंट्स पे वेकेंसी है, खाली जगह है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ वेकेंसी डिफेक्ट ओनली. But we have named it as Schottky defect. Schottky, after the name of the scientist who discovered this. So Schottky defect is seen in ionic solids. Schottky defect, in short, is the vacancy defect which is seen in your ionic solids. The electrical neutrality is maintained when equal number. रहेगा उसमें this defect, उसमें this defect रहेगा. No, Mayuresh, no बेटा, no. Defects are not affecting the stability. देख बच्चे, ये unstable नहीं है. ये unstable क्यों नहीं है? Because इसमें से equal number of negative ions and positive ions have been displaced. तो overall electrical neutrality maintained है. And the second thing is all the crystals have some or the other defect. कुछ ना कुछ defect सब crystals में होता है. कोई भी crystal positive नहीं होता है. When I say crystal, I'm referring to crystalline substances. I'm referring to crystalline solids. Okay, beta Mayuresh? Good. Now, mass will decrease. Volume will remain the same. ये volume will remain same because उसका dimension चारों साइड से same है. अंदर से atoms missing है. Atom missing हुआ तो obviously mass decrease हुआ. ये mass decrease हुआ तो density decrease होगा. Yes, right. Because density is mass upon volume. And mass is decreasing, but volume is remaining the same. So ऐसा अगर ज्यादा Schottky defects रहेगा उसके अंदर तो उस solid density कम होता जाएगा. Now let us see examples of compounds which show Schottky defects. I hope you can read this first point. So, people, compounds which are highly ionic compounds. What do you mean by highly ionic compounds? Means the coordination number is too high, 8, 12, 14 and so on. ठीक है?
coordination number बहुत है. What is coordination number at any given point of time? The total number of atoms touching an ion or a cation. ठीक है, तो that is coordination number. Also जब cation और anion के size में, when see cations and anions sizes differ. Now when the sizes of cations and anions does not differ much, ऐसे compounds में generally we can see Schottky defects. ऐसे compounds में we generally see Schottky defects. You can write these simplified points बेटा, ये आपको short note में काम आएगा. अगर जैसा यहाँ पे लिखा है ना वैसे का वैसे भी उठा के लिख दोगे तो भी पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को. ठीक है, it depends totally on you whether you are taking writing it down or you are taking a screenshot. That I leave up to you. Now look at the examples. Examples are silver bromide, cesium chloride, NaCl. These are certain examples of compounds which are exhibiting Schottky defects. और कुछ नहीं तो कम से कम ये अगर आपने याद रख लिया ना तो आपको एंट्रेंस में क्या बोलते हैं, एंट्रेंस में सॉल्व करने के लिए, याद रखने के लिए काम आएगा. ठीक है, which of the compounds क्या बोलते हैं exhibit Schottky defects and all. तो ये सब theory छोटे मोटे questions कभी कभी काम आ जाते हैं and that helps us increase our score, right? So nothing is useless in studies beta, so never ever ask this question again that what is important and what is not. You all are preparing for your entrance exams and everything is important from the first word in the textbook to the last word. Everything you should be able to grasp. I'm not saying by heart, but grasp and keep it in your mind. Schottky defects, it maintains the electrical neutrality of the crystal. This is happening because equal number of cations and anions are being displaced. तो अगर 4 पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेस्ड है तो 4 नेगेटिव आयंस भी डिस्प्लेस्ड होगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है. And now look at this point. This is some additional point. ठीक है, अभी this is just some facts about numbers which is in front of you, that there are 10 to the power 22 ions in 1 centimeter cube. 1 centimeter वॉल्यूम है 1 centimeter cube. उसके अंदर कितना approximate ions रहता है? 10 to the power 22. Yeah, anybody wants to talk? I can hear someone. Okay, ठीक है. And at room temperature, I think किसी का mic on है बेटा. There are approximately 10 to the power 6 Schottky pairs per centimeter cube. Beta, what do I mean by 10 to the power 6 Schottky pairs? Schottky pairs मतलब 10 to the power 6 positive and negative ions combined, उतना missing रहता है. स्क्रीनशॉट ले लिया था बेटा. Can I move on to Frankel defect? हेलो सर. कौन बोला? सर मैं पार्थ. 2 मिनट पीछे करो ना सर. तुम पार्थ बोले हो? सर 2 मिनट. हाँ बेटा मैंने किया. लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो? स्क्रीनशॉट ले. वेरी गुड बेटा, पर बाद में लिख लेना. हाँ सर. My girls are sincere. They're writing. ऋषिकेश स्क्रीनशॉट ले रहा है, I don't mind that, but बाद में ना लिख लेना बेटा, please. Nothing can ever replace your writing down and learning. This is going to be traditional and always going to be famous. This is how you actually keep it in your mind. Very good. And I think this video will again be uploaded on the YouTube channel, if I am not wrong, right, sir? Cool. In the meanwhile, I'll enjoy the hot tea which I have in my hand. And some crackers to enjoy with it. हो गया, चलो. दुबे, कविता दुबे का हो गया. मयूरी बेटा लिख लिया? Can I move ahead? Okay, cool, fine.
Oh my God. फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट भी वेरी गुड आकाश। फ्रैंकल डिफेक्ट भी बेटा अपने को आयनिक सॉलिड्स में दिखता है। अभी दिस इज वेरी मच सिमिलर टू योर क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेट अस हैव अ लुक एट फ्रैंकल डिफेक्ट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो क्या होता है ना, एक लैटिस पॉइंट पे पॉजिटिव आयन था, वो अपने एक्चुअल पॉइंट से डिस्प्लेस होके जाके एम्प्टी स्पेस या वॉइड में जाके फिट हो जाता है, बैठ जाता है दैट वे, ठीक है। अभी क्यों छोटा वाला एटम गया? बिकॉज ऑब्वियसली उसका साइज छोटा है और वो क्या बोलते हैं वॉइड में आराम से जाके बैठ सकता है, नेगेटिव आयन का साइज वहां पे फिट होगा नहीं, राइट। तो इस तरीके से दिस इज योर डिफेक्ट। Now electrical neutrality will be maintained and stoichiometry is also maintained. Now how is electrical neutrality maintained? बेटा वो पॉजिटिव आयन जो था वो निकल के बाहर नहीं गया है तो स्ट्रक्चर में ही, तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस तो अभी भी सेम ही है, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। एंड रेशियो ऑफ पॉजिटिव आयंस टू रेशियो ऑफ नेगेटिव आयंस भी अभी भी उतना ही है, बिकॉज वो एटम उधर ही है, तो स्टोइकियोमेट्री भी मेंटेन्ड है। Okay, so this is called as your Frankel defect, or it can also be called as your dislocation defect. Frankel defect or dislocation defect. You see one thing, isn't it a combination of vacancy defect and this क्या बोलते हैं दूसरा बता रहे हो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? यहाँ से इस पॉइंट से मेरा पॉजिटिव आयन निकला तो वहां पे वेकेंसी हो गया और जाकर के कहाँ बैठा? इंटरस्टाइसिस में, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो गया। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अरे वही बोल रही है, वेकेंसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का इट इज अ कॉम्बिनेशन। वेकेंसी डिफेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे इसके ओरिजिनल साइड पे। एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहाँ है? जो वाइट प्लेस है वहां पे जो मेरा एटम जाके बैठ गया है। नाउ ions are not missing, any ions are not missing, so density will not be affected because mass is not missing, right? Nothing has been added. Now they are common in ionic compounds with low coordination number and large difference in the size of cations and anions. large difference क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि छोटा जो आयन है वही जाके वॉइड्स में बैठ सकता है, बड़ा आयन वॉइड्स में नहीं बैठ सकता। जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना इजीली मेरा छोटा आयन जाकर के वॉइड में बैठ सकता है। इसका एग्जांपल क्या आएगा? सिल्वर हैलाइड्स, स्मॉल साइज ऑफ सिल्वर आयंस, एंड जिंक सल्फाइड में जिंक का छोटा साइज की वजह से। In pure alkali halides or alkali halides में we cannot see Frankel defects. Why can't we see Frankel defects? Because the positive ions are bigger than the voids that are present over there. अब अगर void में जगह ही नहीं है पॉजिटिव आयन को बिठाने का तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो अपना ओरिजिनल पॉजिटिव आयन जो है वो अपनी जगह छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए प्योर अल्कली हैलाइड्स में इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज द आयंस का साइज इज बिगर देन द वॉइड्स। सिंपल लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर कौन बोला? मैं संदेश। हेलो, संदेश बोलो ना। वापस एक बार रिपीट कर रहा सर। ओ माय गॉड, क्यों? कौन सा वाला पार्ट बेटा संदेश? सिंस नो आयंस, वापस एक बार रिवीजन। अच्छा, ये फ्रैंकल डिफेक्ट का क्या? हाँ हाँ देख, अच्छा तुम स्पीकर ऑन रखना बेटा, माइक ऑन रखना बेटा। ये हाँ। देखो अपना फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है बेटा? एक लैटिस पॉइंट से पॉजिटिव आयन निकलेगा और जाकर के दूसरे वॉइड में जाके बैठेगा, ठीक है। तो हाँ। ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्या हुआ है? बस एटम का पोजीशन चेंज हुआ है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके बैठा है, वो स्ट्रक्चर के बाहर नहीं गया है, ठीक है।
जब हाँ। स्ट्रक्चर के अगर वो बाहर नहीं गया है, अगर स्ट्रक्चर के बाहर नहीं गया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस तो उस पूरे स्ट्रक्चर में सेम ही है। अगर टोटल नंबर ऑफ आयन सेम है तो उसका मास भी सेम रहेगा, और अगर उसका मास सेम है तो उसका डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा, राइट? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? ये बोलता है कि ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहता है और पॉजिटिव आयन बहुत छोटा है और नेगेटिव आयन बहुत बड़ा है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, ताकि मेरा पॉजिटिव आयन जो छोटा है वो आराम से डिस्प्लेस होकर के वॉइड्स में जाके बैठ जाए। अगर साइज बड़ा रहेगा तो वो वॉइड में जाके नहीं बैठ सकता, ठीक है? इसीलिए प्योर अल्कली हैलाइड्स में फ्रैंकल डिफेक्ट्स नहीं दिखता है। प्योर अल्कली हैलाइड्स, अल्कली बोले तो क्या बेटा? ग्रुप 1 का जो भी मेटल रहेगा, सोडियम का ग्रुप का जो मेटल रहेगा, राइट, वो मेटल्स का आयन का साइज इज बिगर देन द वॉइड्स दैट इज फॉर्म। जो वॉइड रहता है उससे बड़ा उसका साइज रहता है, इसीलिए वो वॉइड में जाके बैठ नहीं सकता है। और उसका दो एग्जांपल इज जिंक सल्फाइड एंड सिल्वर हैलाइड। समझा बच्चे? हाँ। हाँ सर। वेरी गुड। Anybody else having any doubt, beta? You can at any point of time unmute yourself and ask, beta. For this is the reason why we are having this platform, so that we can keep a interactive session with each other. It is easier for me to interact with you guys. हेलो सर। हेलो विजय सर। हाँ सौरभ, बोलो, जोर से बोलो बेटा जरा। हाँ सर, आपने भी बोला कि जो मेटल्स होंगे, सॉरी, ये जो हाइलाइट्स होंगे। आओ हाँ आओ। सर, उसमें सिर्फ हाइलाइट्स होते कि मेटल्स भी होते हैं? मैं समझा नहीं बेटा। प्योर अल्कली हैलाइड्स, अल्कली हैलाइड्स मतलब एक अल्कली मेटल और हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है? तो अल्कली हैलाइड्स जो रहेगा, अल्कली हैलाइड्स में हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं देख सकते। अपना अल्कली हैलाइड NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कली हैलाइड ना। हाँ, मतलब सर इसमें एनायन और कैटायन दोनों भी रहेंगे ना, कि मतलब सिर्फ वही नहीं नहीं, कैटायन ही बिल्कुल रहेंगे? दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे। बट दोनों रहेंगे ना सर? ये डिफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो पॉजिटिव आयन का साइज है वो काफी बड़ा रहता है एज कंपेयर टू द वॉइड विच इज प्रेजेंट, इसलिए वो वहां जाके बैठ नहीं सकता है, ठीक है? हाँ सर। ओके, हाँ सर। चलो सबका हो गया, ये लिख के एंड स्क्रीनशॉट लेके, सो वी कैन गो अहेड देन। किसी का माइक ऑन है रे? माइक बंद करो। Now we are moving towards a different type of defect, which is your impurity defect. What is your impurity defect? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका हो गया। सो व्हाट इज दिस impurity defect? Impurity defect अब हम लोग देखते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये सब देखे। पॉइंट डिफेक्ट हमने देखा था जहां पे देयर इज नो फॉरेन एटम। ये बेटा फॉरेन एटम बोले तो दूसरे एलिमेंट का एनायन या कैटायन इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होना। फॉर एग्जांपल, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल आई एम गिविंग यू। सपोज दिस इज द क्रिस्टल फॉर NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है? पॉजिटिव आयन सोडियम का है, नेगेटिव आयन क्लोरीन का है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव आयन निकल गया और उसकी जगह कोई दूसरा पॉजिटिव आयन आकर के बैठ गया, दूसरा बोले तो सोडियम का नहीं, किसी और एलिमेंट का, तब हम लोग इसको impurity defect बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? impurity defect. Let us see how does that happen. Foreign atoms जो होता है ना, they can either come and replace in the interstitial site, or they can occupy in place in the voids, in the void spaces, ठीक है? ठीक है, ये इस पॉइंट पे impurity आयन, impurity क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट्स अ फॉरेन दिस।
देखो वन थिंग, ये सब इस रेड वाले का जो चार्ज है वो +1 है और ग्रीन वाले का भी +1 है, तब तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, विच इज गुड इनफ, ठीक है। बट व्हाट इफ मैंने जो एटम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट किया है, उसका चार्ज +2 था और बाकी सब जो आयंस है ओरिजिनल वाले उनका +1 है, तो चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। सिंस यहाँ पे +2 वाला एटम मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए एक और रेड एटम डिस्प्लेस हो जाएगा और वहां पे वेकेंसी क्रिएट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द स्ट्रक्चर। डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करते हैं क्या? यस सौरभ, हम लोग आगे जाके देखेंगे when we'll be learning your semiconductors in this same chapter, we'll be seeing that we are going to use this impurity defect to dope semiconductors and increase their conductivity. आता example बघूया, crystallization of molten sodium chloride. सोडियम सा पिघलायलेला सोडियम क्लोराइड था, ठीक है। अभी जब सोडियम क्लोराइड मेरे को समुद्र से मिलता है तो वो एकदम प्योर तो रहता नहीं, उसमें बहुत सारा क्या बोलते तो भी इम्प्योरिटीज रहता है, ठीक है। नाउ आई एम क्रिस्टलाइजिंग दिस, मतलब मेरे पास मोल्टन स्टेट में था सोडियम क्लोराइड, मैं उसको क्रिस्टलाइज कर रहा है। क्रिस्टलाइज कर रहा है मतलब मैं उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डाल रहा है। सपोज देयर इज अ इम्प्योरिटी ऑफ SR, this is your strontium 2+ ion. I'm sorry, I'm getting hiccups. This is your ion of SR2+, ठीक है। अभी अगर if this is added as an impurity तो क्या होगा इस स्ट्रक्चर में? देखो, sodium is +1, SR is +2. If this impurity is being added to this structure, since this is +2, one SR2+ is going to displace 2 sodium ions. Why? Because the electrical neutrality, the overall charge of positive and negative ions should be equal and opposite. तो अगर ये एक ही एटम को डिस्प्लेस करेगा तो अपना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हिल जाएगा। दैट इज व्हाई ये दो एटम्स को डिस्प्लेस करता है एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। ऐसा करने में क्या हुआ बेटा? एक वेकेंसी डिफेक्ट भी क्रिएट हो गया, यहाँ पे ये लैटिस पॉइंट खाली हो गया, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के साथ साथ वेकेंसी डिफेक्ट भी आ गया। डिफेक्टिव क्रिस्टल, हाँ इम्प्योरिटीज नेचुरली ऐड होता है, इसलिए मैंने बोला ना नेचर में एनीथिंग इज नथिंग इज परफेक्ट, तो इम्प्योरिटीज आर एडिशनली पुट इनटू इट। जब सोडियम क्रिस्टल बन रहा रहेगा नेचर में तभी भी ऐसा होता है। ऐसा तो वो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ने नमक पानी से निकाला, उसको रिफाइन किया, उसको आयोडाइज किया, उसमें आयोडीन ऐड नहीं किया, सर, उसमें ये किया, उसमें वो किया। कौन बोला? सर सौरभ। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, आपने बोला वो जो स्ट्रोंशियम 2+ आयन है वो उसमें ऐड आओ होगा, आओ। तो सर वो जो 2 सोडियम के आयन निकलते हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं? या ऑब्वियसली यस बेटा। एक पहला एटम निकलेगा, क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रोंशियम रिप्लेस कर रहा है, तो स्ट्रोंशियम रिप्लेस करने के लिए जगह खाली चाहिए, राइट? तो वो एटम निकल गया। नाउ सिंस स्ट्रोंशियम इज 2+, इसीलिए 2 पॉजिटिव आयंस अपने आप निकल जाते हैं रिप्लेस करने के लिए। ऐसा करने में यहाँ पे एक खाली जगह हो गया है, सिंपल एज दैट। सो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट के साथ साथ यहाँ पे वेकेंसी डिफेक्ट भी आ गया। ओके बेटा। सर तो फिर जो उसकी न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए दो जो क्लोरीन का आयन वो भी तो ऐड हो सकते हैं ना सर? क्या बोल रहा है? क्लोरीन आयन ऐड हो सकता है ऐसा? क्लोरीन ऐड होगा बेटा तो मेरा जो अपना क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, जिस पॉइंट पे मुझे पॉजिटिव आयन चाहिए वहां पे अगर नेगेटिव आयन आ गया तो डोंट यू थिंक थोड़ा हलचल मच जाएगा? हाँ बराबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? पॉजिटिव के आसपास सब नेगेटिव है, और अगर मैंने इस खाली जगह पे क्लोरीन डाल दिया बेटा तो क्लोरीन 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 उसके आसपास हो जाएगा। डोंट यू थिंक द स्ट्रक्चर विल बिकम अनस्टेबल? हाँ सर बिल्कुल। राइट बेटा? हाँ ओके। ओके सर। Two Na+ are removed to maintain the electrical neutrality. एंड यहाँ पे क्या बन गया बेटा? कैटायनिक वेकेंसी बन गया। एग्जाम्पल देख लो,
जब भी CdCl2 is added to silver chloride, when silver chloride is mixed with cadmium chloride, there is a impurity defect which is introduced in silver chloride. Cd2 plus ion is the place of Ag plus, and two Ag plus ions will be, क्या बोलते तो भी, displaced. ये सबको समझा क्या रही है? Everybody understood this? Move on to non-stoichiometric defects. Now, we are going to move to non-stoichiometric defects. So now I'm just in with you. Let us move to this part now. Non-stoichiometric defect. So dekha, that was stoichiometric defects. Now we are looking at non-stoichiometric defects. Okay guys, let us move ahead with this. Now, उसका definition और इसका definition obviously अलग रहेगा. Even after the defect, the ratio of the anions and cations or the atoms was same, was equal. यहाँ पे that is going to get disturbed. The ratio in which the elements are combining and their original formula, that is going to get disturbed. So let us see what is this non-stoichiometric defects, or what are these non-stoichiometric compounds. Again, non-stoichiometric compounds, they are classified into two types. What are these two types? Excess metal ions और excess non-metal ions. ठीक है, metal excess defect जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे देखेंगे. These defects are due to the presence of either ज़्यादा metal ions रहेगा या फिर ज़्यादा non-metal ions रहेगा. They are of two types. What is this two types? Metal excess defect and metal deficiency defect. ये दो हम लोग को पढ़ने हैं अपने पोर्शन में. Metal excess defect and metal deficiency defect. Has everybody written this? This is just the introduction. आगे ये क्या होता है वो आगे आएगा. Says no. Karthik, what are you saying no to? Why am I asking you to write this down? It will be easier for you to frame answers because they are very point-to-point answers. All the important points are covered. Easy language, easy to understand and easy to write. As simple as that. So let's go ahead. Let us see what is metal excess defect. ठीक है? Metal ions are more to the stoichiometric ratio. Now, why is this caused? ठीक है? It is caused due to two types. ठीक है? Either anionic vacancies or excess of extra cations at the interstitial site. Interstitial site हमको पता है, voids या फिर खाली जगहों पे अगर extra cations आकर के बैठ गया तो मेरे को metal excess defect होएगा, या फिर anionic vacancies अगर हुआ तो मेरे को उस structure के अंदर extra metal आ जाएगा, extra नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. ये कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं. ठीक है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर. हाँ बेटा बोलो. हेलो,
सौरभ कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। ओके। Metal excess defects due to anionic vacancy. X minus is your negative ion. अमला क्या हुआ बेटा? अरे माइक ऑन करके बंद कर दी। So metal, the positive ions which you see are the metal ions, and the negative ions which you see are the negative ions. ठीक है? Now anion is missing from its lattice side, leaving a hole over here, which is occupied by the electron. हॅलो कौन है? कार्तिक बोलो बेटा. सर, मागचं पेज दाखवा ना. अरे तू किती स्लो आहे रे कार्तिक. सर, तुम्ही किती पटपट चालले. स्लो चालू का? अरे तू इम्पॉर्टंट नव्हता म्हणून. हा पेज दाखवायचे की याच्या मागचा पेज दाखवायचे? हेच ते. हेच ते. कार्तिक अपना वो है ना, चश्मुश, चश्मे लगाता है, तिलक लगाता है, दैट क्यूट लिटिल बॉय. मुझे तुम लोग के चेहरे भी याद नहीं है. कितने दिन हो गए. झालं का रे कार्तिक? अरे स्क्रीनशॉट घे बाळा, नंतर लिही, ते चालेल ना आपल्याला? हा चालेल सर. ओके. आता पण लिहिलं तरी काही हरकत नाही मला. दॅट इज ओके. आपण बघूया एक्सेस डिफेक्ट. What's happening is an ion, a negative ion is missing from its lattice point. Anion is missing from its lattice point. यहाँ पे खाली जगह हो गया, खाली प्लेस हो गया. अब इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव आयंस या मेटल आयंस इज मोर एज कंपेयर टू द नेगेटिव आयंस, बिकॉज एक नेगेटिव आयन मिसिंग हो गया है. बट इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है. तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आकर के जगह ले लेता है. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? इसके आसपास काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ठीक है. मेटल से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स या फिर एनायन से फ्री हुए इलेक्ट्रॉन्स. दैट इलेक्ट्रॉन कम्स एंड सिट्स इन दिस होल विथ दिस वेकेंसी व्हिच इज क्रिएटेड. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ गया, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया. जितना प्लस है उतना नेगेटिव भी है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. ये देखो संदेश को बेड पे लेटे लेटे क्वेश्चन ये देख रहा है. Now this hole is occupied by an electron to maintain the electrical neutrality. Now you need to remember this. This is something extra जो आपको entrance में काम आएगा अपने 12th में. But let me not say that. अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ 12th के लिए important नहीं, तुम लोग पढ़ना ही छोड़ देते हो. So better that you study. ठीक है. The anionic site, ये जो साइड था जहाँ से anion missing हुआ और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो उस साइड को हम लोग F center बोलते हैं. We call it as an F center, and the full form of F is, it's a German word which stands for Farben-Center center. Farben-Center center. F center is your Farben-Center center. Now this center is responsible for the color in many compounds. For the color in many compounds. Why? Because electron is continuously क्या बोलते हैं, releasing energy, accepting energy, जिसकी वजह से हम लोग को क्या बोलते हैं, तो भी यहाँ पे कलर दिखता है. ठीक है. So just write this thing down. Farben-Center center. ये आपको एंट्रेंस वगैरह में काम आएगा बेटा. F center is your Farben-Center center. It is German word for color center. ठीक है. These centers are responsible for the color of your compound. सोडियम क्लोराइड में दिखा, पोटेशियम क्लोराइड में दिखा. तो अल्कली हैलाइड्स जनरली ये डिफेक्ट्स दिखाता है. मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट. इसको मैंने मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों बोला? एक्सेस डिफेक्ट क्यों बोला? अगर इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेगा तो इसके अंदर
मेटल आयंस ज्यादा है और जो नेगेटिव नॉन मेटल आयंस था वो एक कम हो गया, इस स्ट्रक्चर में एक कम हो गया, ऐसे ओवरऑल स्ट्रक्चर में तो काफी कम हो जाएंगे, उन सबकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन इज नॉट काउंटेड एज अ नॉन मेटल ना, तो अगर काउंट करेंगे द रेशियो ऑफ पॉजिटिव मेटल टू द नेगेटिव मेटल आयंस चेंज हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोल रहे हैं। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड ना। If you have not, please feel free to ask questions like some of your very learned colleagues are asking, and I'm very happy that you all are asking questions. This is what this platform is meant for. It is as good as a classroom lecture. Balki it is more effective because we are studying more and nonsense is less. Let's see metal excess defect which is happening because of the presence of extra cations at the interstitial site. Bole to empty space, vacant space. Now see this, what is happening in this metal excess defect. Now voids है ना, voids के अंदर ना extra metal ion आके बैठ जाएगा, तो छोटा होता है उसका साइज, ठीक है, तो वो आके बैठ जाता है। But again इस स्ट्रक्चर में if I see now the positive charge has increased and negative charge is less, but I can in any structure the nature always wants electrical neutrality, so electrical neutrality should be maintained naturally, right? तो क्या होगा, तो दूसरा interstitial species है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाता है, simple as that. So तो जिन आयनिक सॉलिड्स के अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट्स होता है ना, वैसे क्या बोलते हैं एलिमेंट्स के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाता है, pretty much similar to फ्रेंकल डिफेक्ट होगी, बट फ्रेंकल डिफेक्ट में वेकेंसी हो रखा एक पॉइंट पे, यहाँ पे वैसा नहीं है। अभी लुक एट दिस, zinc oxide is white or colorless at the room temperature, but when we are heating zinc oxide it loses oxygen and turns yellow in color. I don't know, on heating is going to give me Zn2 plus half O2 and 2 electrons are ठीक है, ये हीट करने पे हुआ, तो क्या होता है Zn2 प्लस आयंस जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे ट्रैप हो जाते हैं, और जो रिलीज इलेक्ट्रॉन्स है इक्विवेलेंट अमाउंट वो भी इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाते हैं। व्हाई? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। दे आर फ्री, देखो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे इंटरस्टिशियल साइट पे जमा हुए हैं, अगर मैं इनको पोटेंशियल डिफरेंस एक अप्लाई कर सकूं, so these free electrons will absorb energy and start flowing, and if they start flowing that means they are going to contribute to conductivity. तो ऐसे substances को हम लोग सेमीकंडक्टर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर ना, नॉट कंडक्टर्स। समझा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों हुआ है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ है इसलिए कि एनायनिक वैकेंसी हुआ, नेगेटिव आयन जो हुआ वो मिसप्लेस हो गया, उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। तो अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखूंगा तो मेटल आयंस आर मोर एज कंपेयर्ड टू द नॉन मेटल आयंस, दैट इज व्हाई यू आर हैविंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक वो कारण है। दूसरा कारण क्या है? पॉजिटिव मेटल आयंस व्हिच आर स्मॉलर इन साइज दे विल सिट इन द एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल स्पेसेस, उसके साथ साथ equivalent number of electrons are going to sit in the interstitial spaces to maintain the electrical neutrality. So metal excess defect in short is more number of metal ions as compared to the negative ions in the structure, as simple as that. समझा बेटा? सॉरी मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाया, was continuously talking all the time. हाफ क्यों लिया गया है? नॉर्मली बैलेंस करने से होता है, में भी होगा।
Guys, I'm sorry I couldn't see the chat. What do you want to write? कोई फ्री करके बोलेगा तो I'll take it back. लिखना था? Guys, can I go ahead? Metal deficiency defect. हाफ इसलिए लिखा है बेटा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो इसलिए हाफ लिखा था ना सौरभ, न्यूरेश. Can we go ahead now? अगर 2 ZnO लेंगे बेटा तो Zn के आगे 2 लग जाएगा. It's one the same thing. It's a normally balanced equation है बेटा. आपको इधर क्या इशू आ रहा है? अगर यहाँ 2 लिखा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा. ओके, चलो. Start with metal deficiency defect. No. Voice break हो रही है. Can we start with metal deficiency defect, people? Kshetratnya and Tushar, if I'm audible, can we start with the metal deficiency defect? Okay. Okay. Now see this. Metal ion is missing from the original site. अब यहाँ पे metal ion is missing. यहाँ पे non-metal ion was missing. यहाँ पे metal ion is missing. अभी the scene is again everywhere we have to take care of the electrical neutrality of the structure. Electrical neutrality of the structure should not be affected. यहाँ से 2 positive metal ions are displaced. ठीक है? तो now see what is going to happen. या तो सेम मेटल का दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मेटल आयन यहाँ पर है, like this, to occupy the vacancy which is created. 2 वैकेंसी हुआ, m plus निकल गया, उसमें से एक वैकेंसी has been replaced with a metal 2+ ion. Now 2+ आया मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया. ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया. ठीक है? This is a higher oxidation state of the same metal. It will occupy only the sum of the sides and the other sides are going to remain vacant. ठीक है? अभी अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेटल आयंस देखेंगे तो कम ही आएगा. Look at this. What are we looking at here? I have 2 types of क्या बोलते हैं आयरन का आयंस, Fe2+ and Fe3+. आयरन ऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं.
types of metal, two types of iron ka ions, Fe2 plus and Fe3 plus. Now let us see what's happening over here. This is the crystal of Fe. Now crystal ions are going missing. Okay, crystal ions are missing. Metal ions are missing. 3 Fe2 plus ions were missing. So what happened? 2 Fe3 plus ions replaced those ions. So कितना charge missing हुआ था? +6 was missing. कितना add हो गया? Again +6. Right? 3 Fe2 plus means how much charge? +6. 2 Fe3 plus means how much charge? +6. So charge has been maintained, but a vacancy has been created over here. Overall charge is balanced, but there is vacant space over here. This is your metal deficiency defect. Okay, guys? Now we are going to move towards conductivity in solids. Before that, if you have understood the defects. Has everybody understood all types of defects, beta? If you all have understood all types of defects, then we can move towards others. We can move towards others. हेलो सर. सौरभ रजक बोल बेटा. सर वो लास्ट वाला दिखाओ ना एक बार. लास्ट वाला बेटा. हाँ सर, लास्ट वाला के पहले वाला. वाओ. नहीं मतलब यू आस्क मी ना, मैंने वो एक्चुअली स्क्रीन बंद कर दी है, फिर मुझे इसको बंद करके वो स्क्रीन खोलना पड़ेगा. कुछ लिखना है तुमको बच्चे? नहीं सर, कुछ पूछना था. हाँ पूछो. सर उसमें से 2 एनायंस गए थे ना. आओ. हाँ सर, तो फिर 2 चार्ज कम होना चाहिए माइनस. यस. तो सर उसको फिल करने के लिए सर 2 प्लस चार्ज कैसे आ गए? देख बेटा, आयरन हैज वेरिएबल वैलेंसीज और अदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है सर, आयन का नहीं था वो सर, उसके पहले वाला था M प्लस और X माइनस वाला. that was for explanation. फिर उसी को मैंने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया ना. M प्लस और M2 प्लस, वो केस अपने एग्जांपल में कहता है Fe2 प्लस और Fe3 प्लस. हाँ राइट. तो Fe3 प्लस का 2 एटम्स मिसिंग हो गया, उसकी जगह Fe2 प्लस का 3 एटम मिसिंग हो गया, तो उसकी जगह 2 Fe3 प्लस का एटम्स आकर के वहां पे बैठ गया. चार्ज मेंटेन हो गया, बट मेटल का वैकेंसीज क्रिएट हो गया वहां पे. ऐसा. हाँ सर वो समझ में आया, पर सर जो उसके पहले था ना सर, उसमें बच्चे that was a generalization of example. तो अगर आप उसमें M प्लस और M2 प्लस में कंसिडर करोगे ना, तो टेक इट एज एन एग्जांपल. व्हाट इज M प्लस? Fe2 प्लस. व्हाट इज M2 प्लस? Fe3 प्लस. ऐसा एग्जांपल था वो. इट वाज अ जनरलाइजेशन ऑफ द सेम एग्जांपल. ओके सर. ठीक है बेटा सौरभ? इफ नॉट देन आस्क मी अगेन बच्चा. इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू नॉट अंडरस्टूड. आस्क मी अगेन. सर वो जब 2 X माइनस गए. रुक बेटा, मैं ना इसको ना पोस्ट करूंगा फिर से. इसको भी चाहिए. तो लेट मी जस्ट अगेन. तो हाँ हाँ सौरभ. हाँ सर. यहाँ पे थे हम. 2 मेटल मिसिंग हो गया. ठीक है सौरभ? हाँ अभी देखो,
अभी चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की सेम मेटल आयन का हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन दैट प्लेस। अब बोलो बेटा। हाँ सर समझ में आया अभी। पूरा भाई पूरा वीडियो सर- वापस प्ले करवा दिया। हाँ यस सर शायद मैंने देखा ना कि 2 x माइनस बाहर निकल गए और एक m2 प्लस उधर पे ऐड हो गया। इसलिए बोलते हैं बेटा चेहरे पे पानी मार के बैठा करो लेक्चर में, आप नींद में हो। नहीं सर, जब मैंने देखा ना तब वहां से ऑलरेडी 2 गायब हो चुके थे, तो मुझे लगा कि शायद वहां पर x माइनस था। देख रहे हो। कार्तिक तुमको क्या चाहिए? कार्तिक हाँ सर। क्या चाहिए था बेटा? चाहिए सर तुला काय पाहिजे? वाह, hold on, let us we start with conductors now. And insulators के बारे में पढ़ा है, but since we are studying in solid state, since we are studying about the different metals and the crystalline structure, it is important for us to study their property of conductivity also. So let us quickly revise what is conduction band, what is valence band, what is energy gap, what is overlapping, what is difference and all. ठीक है? ये वाला part is going to be easy for you to understand, I'm very sure, because these things have been done past. This is the definition of a conductor. The conductivity is going to range between 4 to the power 7 per ohm meter. Hey beta, what is the unit for resistance? Ohm. तो कंडक्टेंस इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसका यूनिट भी 1/ओम हो जाता है. समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट एज मो, MHO, उसका स्पेलिंग को उल्टा कर दिया है, बट एक्चुअली इट इज 1/ओम. ठीक है? एंड द कंडक्टिविटी इज 10 to the power 4 to 10 to the power 7 per ohm. ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नंबर है, कहीं भी काम आ सकता है अपने को. Now metals have conductivity having a very high order. बहुत strong और बहुत high रहता है. Why? Because उनके अंदर metallic bond होता है. What is metallic bond? Metallic bond is positive ions embedded in a sea of electrons, in a sea of free electrons. बोलते potential difference apply करो and they धड़ाधड़ करंट जाने लगता है उस metals में से. ठीक है? That is why they are the best conductors of electricity. All metals, copper wire and all we are using na for conductivities. अभी देखो, gold, copper, aluminium, all these, they are all very good conductors of electricity. खासियत ये है कि they can conduct electricity in both the states, in solid also and in the molten state also. Solid state में भी करंट बहेगा एंड मोल्टन स्टेट में भी करंट बहेगा. मयूरेश को सिल्वर चाहिए. क्या हुआ बेटा? नाउ दिस वी ऑल नो, जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा कंडक्टिविटी. द मोर नंबर ऑफ वैलेंस एंड द मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रेडी टू गो फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द व्हिच आर रेडी टू गो फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, the more क्या बोलते हैं conductive the particular compound or element is going to be. This is the concept. This red color thing is your valence band where your valence electrons are there. Valence electrons जब jump होके conduction band में जाता है, they become free to move from one end to the other. This free movement of electron constitutes of current, right? So abhi what will happen is in conductors, this conduction band and the valence band, इनके बीच में ना गैप होता ही नहीं है, they are almost overlapping. तो जैसे ही हम लोग potential difference apply करते हैं,
the electrons which are there in the valence band, they are shifted to the conduction band, which is already overlapping with it, and the current starts flowing. Generally, this is always overlap. In many cases, there is very small difference between the conduction band and valence band. Difference बोले तो energy gap. तो मेरे को मेटल को एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में जाएगा, कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. ठीक है, देयर इज नो फॉरबिडन गैप. दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड एज फॉरबिडन गैप. So these electrons are easily moving from the valence band to the conduction band and increase the conductivity of the metals in conductors. Let us look at insulators. Very bad. Insulators are very bad beta. They do not allow electricity to flow through them. They're very mean, stubborn. Now, its best example is conduction of electricity in non-metals. Plastic, rubber and all, they do not conduct electricity. इनमें क्या होता है ना बेटा, the valence band and the conduction band, the energy gap is very huge. The forbidden gap is very large over here. So how much ever energy you give to the material, the electrons do not gain the energy to go and jump to the conduction band, and that is why they are not conducting. इतना एनर्जी इनको प्रैक्टिकली देना मुश्किल होता है. So that is why they are very poor conductor, or rather bad conductors of electricity. They do not allow electricity to conduct. So that was about insulators. Now we are supposed to move on to semiconductors. Semiconductors के बाद we'll be talking about magnetization in solids, and that is going to be the end of the chapter. Okay, so insulators में थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा अपने को, because we have to see doping, we have to see types of insulators and so on. So I guess insulators will be a fresh topic which we will start in the next lecture. So let us disconnect the lecture here only for today. I hope everything was clear in today's lecture. Okay. Saurabh says yes. Sir, हम लोग insulators, sorry, हम लोग semiconductors next lecture में start करते हैं. That's a different topic altogether. Okay, students. Be safe. Keep studying. Hello.